अब हमको अब क्या करना है, शेयर स्क्रीन। शेयर स्क्रीन, रुको रुको रुको, शेयर स्क्रीन करके बांग्लादेश में जाके, रुको 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 रुको, डेट मॉडिफाई करके, नहीं गलत जगह चले गए, गलत जगह चले गए, वेबिनार में जाना है, वेबिनार में जाके ठीक है, अच्छा 2020 में वेबिनार में जाके डेट मॉडिफाई करके हम सब ये खोल देते हैं। शेयर हो रहा होगा ये ना। अब हमको क्या करना है, रिकॉर्डिंग करना है बाद में, अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप करना है ना। कैसे होगा, पॉज रिकॉर्डिंग कर देते हैं। क्या क्यों? हाँ क्या? हाँ हाँ। Hi guys, can you hear me everybody? Can you hear me? Yes sir, we can hear. Okay, so today we are going to start about MBBS in Bangladesh, and we have got two guests with us, Mr. Yug Behati and Mr. Basidun Sheikh. Both are experts in MBBS admission in abroad, especially in Bangladesh. Okay, so I will be taking their help also for answering all your questions. So let us start. I hope you can see my screen. Everybody, can you see my screen? It is written promise. Hello, can you see my screen? Okay, so before we start the webinar, I, Siddharth Jaiswal, on behalf of National Vidya Foundation, I will like to make a promise that I will conduct this presentation without any bias, and I will convey only the truth to you. We will point out both the pros and cons of studying MBBS in Bangladesh so that students can make an informed choice. If you have any doubt about my presentation, or if you think something is wrong, please interrupt me and feel free to point it out. Okay. First, I'll tell you something about National Vidya Foundation. So National Vidya Foundation was established in the year 2003. We are 17 years old. We have sent more than 3,000 students for MBBS in abroad, and we have counseled more than 20,000 students. The director of our company is Mr. Vivek Kumar Jaiswal, who's a recipient of ADB Government of Japan Merit Scholarship for his MBA education abroad. He has also served as a director of Asian Institute of Management, Manila, Philippines. And now Asian Institute of Management is like in India, we have got IIM Ahmedabad. So it is supposed to be the best management institute in whole of Asia. And it is set up in Philippines with the help of Howard University. And he has counseled more than 10,000 students for MBA, MBBS, and other topics also. He's the author of a book also on career counseling. The second director of this company is myself. My name is Siddharth Jaiswal. I am MCA and MCP by qualification. I have got several years of experience in teaching, programming in the education field, and I have also sent a lot of students abroad. So let us start with, is there scope for doctors in India? According to the WHO guideline, World Health Organization, there should be around 10 doctors for every 10,000 of the population. But according to MCI, we have got only 7.4 doctors per 10,000 of population in India. So there is a shortfall of 6 lakh doctors. And the shortfall is increasing every day because many doctors are getting retired. Okay, and new doctors are coming into the system, which is very, very low. Around 78,000 doctors are coming to the system every year, which is very less as compared to the
population growth and shortfall of doctors in India. Now, MBBS seats in India. Okay. Now, as we know that getting a MBBS seat in India is very, very difficult. It is very competitive. You have to score good marks in NEET. If you score 600 or more marks, you can get into a government college in India. If you get a government college in India, it is very, very good. Please go. And some of the private colleges are also good. Okay. So in India, we have around 532 MBBS college and 313 dental colleges. In 2020, that is this year, 16 lakh students are competing for only 77,000 seats. That is, for every 100 students, there is only 5 seats. Okay. Total number of MBBS seats in India is 76,928. Out of that, government seats is 41,388 and private seats is 35,540. Now, I would like to inform you that if anybody has got any questions, either in Hindi, English, or any other language, please feel free to unmute yourself and ask me the questions. Okay. Right now, everybody is muted. अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट के हैं. तो अकॉर्डिंग टू योर स्टेट, हाउ मेनी मेडिकल कॉलेजेस आर देयर, और उन मेडिकल कॉलेजेस में कितने नंबर ऑफ सीट्स है इन प्राइवेट कॉलेजेस, मैंने एक लिस्ट बनाया है, वो यहाँ पर है. ठीक है. लाइक वेस्ट बंगाल में 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस है एंड 550 सीट्स है उसके अंदर. इस तरह हर स्टेट वाइज मैंने लिस्ट बना के आपको दिया है. लाइकवाइज गवर्नमेंट कॉलेजेस का भी मैंने आपको लिस्ट बना के दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू ईच स्टेट. लाइक वेस्ट बंगाल में 14 गवर्नमेंट कॉलेजेस आर देयर एंड 2000 सीट्स आर देयर. नाउ 2000 सीट्स मींस इसके अंदर SC, ST, OBC कोटा भी है. सो प्राइवेट स्टूडेंट्स विल गेट ओनली अराउंड आई थिंक सो 1300 सीट्स, 1300 और 1100 सीट्स इन वेस्ट बंगाल अगर आप जनरल कोटा के. टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स आर 41,388 all over India. Okay. Now we will start with MBBS in Bangladesh. I'll make this presentation short and I'll try to finish it within 40 minutes. Okay. MBBS in Bangladesh not only ensures that you are proficient, quality education is given, but also there is a high percentage of FMG screening test, passing percentage. Like in 2015 to 2018, around 30% of the students passed screening test from Bangladesh, and this percentage has increased to 35% in 2019. So this is a very good percentage. बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ये पास करते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट. ओके. एडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग MBBS इन बांग्लादेश. बाय बांग्लादेश और भी बहुत सारे कंट्रीज हैं. यूक्रेन है, रशिया है, किर्गिस्तान है, काजाकिस्तान है, many countries are there, Nepal है, many countries are there. Okay. The climate condition is similar to India. ये बहुत बड़ा advantage है. Since the climate condition is same, so the pattern of diseases is also same. Okay. बांग्लादेश का एक चीज़ और है कि outdoor patient flow is huge. बहुत सारे patients आते हैं वहाँ पर, बहुत सारे patients आते हैं, तो आपको clinical जो exposure है बहुत अच्छा मिलेगा. FMCG पासिंग परसेंटेज जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था वो भी काफ़ी अच्छा है. कोई डोनेशन नहीं है, कोई कैपिटेशन फीस नहीं है. यू आर टॉट इन इंग्लिश मीडियम एंड you also have to learn the local language Bengali so that you can talk to the patients. And learning Bengali is very, very easy. It is like Hindi only. So you don't have to worry about it. India के बहुत बगल में है, very near to India. So travel cost आपका बहुत low है. Visa बहुत easily मिलता है. So you don't have to worry about visa. Suppose if you are in Calcutta, तो you can take a bus and go to Bangladesh. इतना बगल में. Okay. The duration of study is 5 plus 1 years, 5 years of theory and 1 year of internship. And one good news is there, like जो न्यूज़ अभी आया है लास्ट वीक ही, बांग्लादेश से जब आप इंटर्नशिप करेंगे तो आपका वो इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड होगा. आपको दोबारा इंटर्नशिप नहीं करना पड़ेगा. पहले क्या होता था कि आप
अब बांग्लादेश या कोई भी कंट्री से इंटर्नशिप अगर आप करके इंडिया आएंगे तो इंडिया में दोबारा इंटर्नशिप करना पड़ता था आफ्टर द FMCG एग्जाम. नाउ MCI इज सेइंग कि आपको नहीं करना पड़ेगा. अगर आपने बाहर ऑलरेडी इंटर्नशिप कर लिया है तो आपको नहीं करना पड़ेगा. तो 6 years में आपका MBBS कंप्लीट हो जाएगा. एंड 1 इंडियन रुपी इज इक्वल टू 1.16 बांग्लादेशी टाका. बांग्लादेश का मतलब करेंसी का नाम है टाका. एलिजिबिलिटी criteria. This is very, very important for Bangladesh because Bangladesh ka eligibility criteria is very, very strict. They want good students. Okay. So if you are a bad student या आपका कोई year gap है तो आपका बांग्लादेश में admission नहीं होगा. So let me repeat the eligibility criteria. The minimum age should be 17. You should have 60% in PCB and you should have at least 60% in bio in class 12. कोई ईयर गैप नहीं होना चाहिए. क्लास 10, 11 एंड 12 के बीच में कोई ईयर गैप नहीं होना चाहिए. लाइक 10 अगर आपका हुआ है 2018 में, 11 होना चाहिए 2019 में एंड 12 होना चाहिए 2020 में. अगर आपका स्टडीज में ईयर गैप है, दिस इज नॉट अलाउड. आई गिव यू अ एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल. अगर आपको एडमिशन चाहिए इन द ईयर 2020 लाइक दिस ईयर, देन यू शुड हैव पास्ड क्लास 12 इन दिस ईयर, दैट इज इन 2020 or in 2019. Similarly, आपका क्लास 10 पास होना चाहिए either in 2017 or in 2018. You should have qualified NEET also, okay? And student should have a 7 GPA, grade point average or above, considering both class 10 and 12. Minimum GPA in class 10 and 12 should be at least 3 and overall GPA should be 7 and above. What is GPA? How to calculate GPA? I'll explain. Okay. Now we'll come to admission process. कैसे आपको बांग्लादेश में admission मिलेगा? What are the steps? First, you have to check the year of passing of class 10 and 12. Okay. तो 12 अगर आपको इस साल एडमिशन चाहिए तो आपका क्लास 12 पास होना चाहिए इन द ईयर 2020 और 2019. ओके. फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका जीपीए क्या है इन क्लास 10 एंड 12 एंड ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी करना पड़ेगा. क्लास 10 का जीपीए एंड क्लास 12 का जीपीए मिला के 7.0 होना चाहिए कम से कम. उसके बाद बेस्ड ऑन योर क्लास 10 एंड 12 मार्कशीट आपका दोनों ईयर्स का पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, दोनों ईयर्स का एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड या पासपोर्ट, एंड नीट का रिजल्ट के साथ यू कैन अप्लाई directly to the college. Then the college will issue you admission letter and depending on the college, हर college का rules अलग अलग है. The college will ask you to deposit between $2,000 and $10,000 to the college account. Directly college के account में आप अपने account से transfer करिएगा तब आपका seat confirm होगा. After getting the offer letter from the college, okay, you have to apply for equivalence certificate from DGHS, Director General of Health Service. तो इसके लिए आपको पूरा एप्लीकेशन बना के सबमिट करना पड़ेगा with attested marksheet and everything to Bangladesh Embassy or Bangladesh High Commission. Okay, along with $70 of payment for your equivalence certificate to DGHS. इसका सब डिटेल्स हम लोग आपको देंगे और बांग्लादेश गवर्नमेंट का वेबसाइट से और एम्बेसी का साइट से भी आपको डेडलाइन मिल जाएगा कि किस डेट तक आपको ये अप्लाई करना है. ओके. इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट क्या होता है? इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट मींस कि हम लोग जैसे क्लास 12 करते हैं और उसके बाद हम लोग को जीपीए निकालना पड़ता है, तो बांग्लादेश में हम लोग अपना सब डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे तो वो लोग उसको कैलकुलेट करके वो लोग सेटिस्फाइड हो जाएगा कि आपका है और सर्टिफिकेट आपको 1 मंथ के अंदर आपको भेज देगा. जब आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा देन यू अप्लाई फॉर अ स्टूडेंट वीज़ा टू द बांग्लादेश एम्बेसी. जब हो जाएगा आपका वीज़ा सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा देन द स्टूडेंट कैन फ्लाई टू बांग्लादेश. आफ्टर रीचिंग बांग्लादेश यू गो टू द कॉलेज, डू योर पेपर वर्क and then you apply to the foreign office for foreign registration. And आपका class start होता है normally in all colleges from the first week of Jan. Like this year अगर आपको जाना है तो classes start होगा from first week of January. And this year as we know because of COVID, इस साल class online भी हो सकता है, offline भी हो सकता है, we do not know.
जैसे जैसे टाइम जाएगा तो विद इन 10-15 डेज वी विल इन्फॉर्म यू कि इस साल का क्लासेस कैसे होगा. Yes, ma'am. Answer it. Now, what is GPA? GPA means grade point average. Grade point average is the representation of average numbers of final numerical point grades in class 10 and 12. Basically, इसका मतलब क्या है कि आपका क्लास 10 एंड 12 में जो मार्क्स आया है उसके बेसिस पर हम लोग आपका GPA कैलकुलेशन करेंगे. एग्जाम्पल, अगर आपका मार्क्स है बिटवीन 80 एंड 100 तो आपका GPA 5 है, बिटवीन 79 एंड 74 है, बिटवीन 69 एंड 63.5 है, बिटवीन 59 एंड 53 है, बिटवीन 49 एंड 42 है, और इसके बाद GPA 1 भी होता है, इट इज बिटवीन 33 एंड 39. तो वो मैंने नहीं लिखा है बिकॉज उस टाइप का स्टूडेंटों को MBBS पढ़ाई भी नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ. मिनिमम एग्रीगेट GPA इन क्लास 10 एंड 12 आपको मिला के 7 होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया था. मिनिमम GPA इन क्लास 10 3 होना चाहिए, मिनिमम GPA इन क्लास 12 भी 3 होना चाहिए, एंड मिनिमम GPA इन बायो 3.5 होना चाहिए इन क्लास 12. इसका मतलब क्या है कि क्लास 12 में आपको बिटवीन 60 एंड 69 मार्क्स आपको बायो में लेके आना ही पड़ेगा फॉर एडमिशन इन बांग्लादेश. ठीक है. एंड आई वुड जस्ट लाइक टू रीइटरेट कि इसमें एक फ्रॉड भी होता है. हाँ, फ्रॉड ऐसे होता है कि अगर आपका मार्क्स इतना नहीं आता है, या आपका स्टडीज में गैप है, या आपने क्लास 12 पहले पास किया है, तो आपको बहुत लोग बोलेंगे कि मैं आपका एडमिशन बांग्लादेश में करवा दूंगा. सो आई वुड लाइक टू टेल ऑल द स्टूडेंट्स कि आप इसमें मत पढ़िएगा, बिकॉज वो लोग आपका डुप्लीकेट मार्कशीट बना के कॉलेज को सबमिट करेंगे, और बाद में आफ्टर 6 years जब आप इंडिया वापस आएंगे तो आप पकड़े जाएंगे. तो इस टाइप का बहुत सारे एजेंट्स लोग अनाउंस करते हैं कि हम आपका ये कर देंगे, सेटिंग है. इस टाइप का कोई सेटिंग नहीं होता है. प्लीज फॉलो व्हाट आर द रूल्स. ये रूल्स बहुत अच्छा है. बांग्लादेश का परसेंटेज, पासिंग परसेंटेज FMG में अच्छा इसलिए होता है बिकॉज दे टेक गुड स्टूडेंट्स. ओके, सो इफ यू टेक गुड स्टूडेंट्स देन इट इज एक्सपेक्टेड कि अच्छे स्टूडेंट्स ही बाहर निकलेंगे. दैट इज द एडवांटेज ऑफ बांग्लादेश. नाउ आई विल टेल यू विद अ ब्रीफ एग्जांपल कैलकुलेशन ऑफ GPA. ये थोड़ा टेक्निकल है. इसके लिए बेस्ट क्या होता है कि आप अपना मार्कशीट हम लोग को भेज दीजिए और मैं आपका GPA कैलकुलेट करके आपको बता दूंगा. एंड एक प्रोग्राम हम लोग अपने साइट में भी बनाने वाले हैं. विद इन नेक्स्ट फ्यू डेज हम लोग के साइट में आ जाएगा कि आप साइट में जाके हम लोग का मार्क्स अगर एंटर करेंगे nvfoundation.com में, बांग्लादेश के अंदर में जाके, तो आपको GPA बता देगा, एंड प्लस ये भी बता देगा कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं. ठीक है. एनी क्वेश्चंस? नन सो फार. ओके. GPA इन क्लास 10 कैसे कैलकुलेट होगा? लेट अस से इट इज X. Minimum should be 3. Okay. So only top 5 subjects are considered for calculation of GPA. So total marks obtained in top 5 subjects, आप सबको जैसे जो भी top 5 subjects होगा A, B, C, D, E, सबको प्लस करके डिवाइड बाई 5 कर दीजिए. GPA in class 12, इसमें only 3 subjects are considered. PCB, तो PCB को प्लस करके डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, आपका हो जाएगा. एंड PCB का एवरेज 60% होना चाहिए, एंड बायो में भी 60 होना चाहिए. फिर जब आपने क्लास 10 और 12 का निकाल दिया है, लेट अस कंसीडर क्लास 10 का GPA X है, क्लास 12 का Y है, दोनों को प्लस करके आपका 7 होना चाहिए. ओके. सो अगर आप इसके अंदर आते हैं तभी आपका बांग्लादेश में एडमिशन होगा. अगर आप इसमें नहीं आते हैं देन डोंट टेक एडमिशन इन बांग्लादेश. आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं करवा दूंगा, मेरा सेटिंग है, ये है, वो है. प्लीज वो सेटिंग में मत आइएगा. ओके, बिकॉज आप बाद में जाके यू विल लूज योर हार्ड अर्न मनी, आप फंस जाएंगे. एंड बांग्लादेश का व्हाट आई लाइक बेस्ट इज द रूल इज वेरी वेरी गुड. दे टेक गुड स्टूडेंट्स. सो आपका ये मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, एंड गेटिंग 60% इन PCB एंड 60% इन बायो इज नॉट अ बिग डील. आपका इतना मार्क्स आएगा तब आप पढ़ाई करिए. अगर इतना मार्क्स नहीं आएगा देन कोई और चीज ले लीजिए. ओके. नाउ आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. सपोज आपका इंग्लिश में 50 है,
हिंदी में 70 है, मैथ्स में 40 है, साइंस में आपका 50 है, सोशल साइंस में 50। इसका हमने जीपीए निकाल लिया अकॉर्डिंग टू आवर चार्ट। ये चार्ट से हमने जीपीए निकाल लिया, ठीक है। और जीपीए फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर ये 4 + 3 + 2 + 3 + 3 को टोटल किया 15, ओके। डिवाइड बाई 5 होगा, यहाँ पर मिस्टेक है मेरा, डिवाइड बाई 5 होगा तो 3 होगा। तो यह जीपीए फॉर क्लास 10 इज 3, ओके। फिर आपका क्लास 12 लेते हैं। बायो में 60 के ऊपर होना चाहिए, 60 के ऊपर है। फिजिक्स में 57 है, केमिस्ट्री में 52 है। तो अकॉर्डिंग टू आवर ओल्ड चार्ट हमने ये निकाल दिया। पीसीबी में देखिए आपका 60 के ऊपर होना चाहिए, पीसीबी का मार्क्स तो आपका 60 के ऊपर है। तो हम लोग ये 3 कैलकुलेट करेंगे। आपका 10 होता है, 4 + 3 + 3, 10 डिवाइड बाई 3.33, तो ये आपका 3 के ऊपर होना चाहिए, ये भी है। तो यहाँ पर है 3 प्लस यहाँ पर है 3.33, सो 3 + 3.33 6.66 होता है, विच इज लेस देन 7। तो आप एलिजिबल नहीं है फॉर बांग्लादेश, ओके। आपका एलिजिबिलिटी 7 होना चाहिए। तो दिस आई हैव एक्सप्लेन यू विद द एग्जांपल, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नाउ द एमबीबीएस कोर्स in Bangladesh focuses on clinical subjects of the students. Duration is 5 years of classroom training and 1 year of internship. Bangladesh में जो studies है, it is divided into 3 parts: preclinical, paraclinical, and clinical phase. Okay. Each semester is of 6 months and instruction is in English language. Okay. And now education is the most powerful weapon which you can use to change the world. This is a quote. I liked it, इसलिए मैंने इसको डाला है. So students, if you have got any question, you can ask in the chat window, number 1, or you can unmute yourself and you can ask me also directly. We have got our 2 experts sitting to answer all your questions. Now we will see at FMG क्या होता है, Foreign Medical Graduate Examination स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या रिजल्ट्स है। तो बांग्लादेश का ये 2015 से 2018 में 698 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, 208 स्टूडेंट्स पास, तो आपका पासिंग परसेंटेज 30% है। 2019 में 528 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, 186 पास, passing percentage has increased to 35%. Now this 35% is among the best passing percentage of FMG among the all the countries जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं. It is among the best. I think it is the second highest, and 2015 से 2018 में it was the highest. अब हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट आप देखिए 2015 से 18 ऑफ डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस इन बांग्लादेश. सो इससे आपको कुछ आइडिया लग जाएगा कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, कौन कौन से कॉलेजेस एवरेज हैं. इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा. सब आइडिया नहीं लगेगा लेकिन काफ़ी सारा आइडिया लगेगा. लाइक बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज ढाका यूनिवर्सिटी का पासिंग परसेंटेज 50 है. चिट्टागोंग मेडिकल कॉलेज का 27 है, वेरी गुड. ढाका मेडिकल कॉलेज का 44 है. ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज का 33 है. ढाका यूनिवर्सिटी मींस इंक्लूडिंग ऑल द कॉलेजेस जो ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर आता है 56 है. इब्राहिम मेडिकल कॉलेज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस 20% है. इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज का 25% है. ज़रूर इस्लाम वेरी गुड कॉलेज अगेन 38% है. ख्वाजा यूनिस अली मेडिकल कॉलेज का 40% है. कुमुदनी वुमेंस मेडिकल कॉलेज इट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स 30% है, अगेन गुड. मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन एंड हॉस्पिटल बांग्लादेश 35% है, वेरी वेरी गुड, ओनली फॉर गर्ल्स. एंड एक कॉलेज और है आपका माय मे सिंह मेडिकल कॉलेज 44%, इसका भी पासिंग परसेंटेज इज क्वाइट गुड. नाउ वी लुक एट 2019 का. अदीन वुमेन मेडिकल कॉलेज का 28 है. बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज का 66% है. सेंट्रल मेडिकल कॉलेज एक ही स्टूडेंट अपेयर किया थे, पास कर लिया 100 है, इसलिए लिखा हुआ है. दिस कॉलेज इज ऑल्सो वेरी गुड. कम्युनिटी बेस्ड मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश 66% है. ढाका मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इसका भी 60% है. ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 33% है. ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज 33% है. इनाम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल 50% है. ग्रीन लाइफ का भी बहुत अच्छा है 40% है. एंड होली फेथ का भी अच्छा है. इस तरह यू कैन हैव अ लुक. इस कॉलेज ज़रूर इस्लाम का काफ़ी अच्छा है 69%.
एंड गर्ल्स कॉलेज का हमको लगता है स्टडीज़ काफ़ी अच्छा होता है, एंड गर्ल्स तो पढ़ाई भी करती है, इट इज़ नॉट लाइक बॉयज़। ख्वाजा यूनिस का भी अच्छा है 47%, एंड कुमुदिनी वुमेंस मेडिकल कॉलेज का 55%, वेरी गुड। इसका काफ़ी अच्छा पासिंग परसेंटेज है, एंड ये कॉलेज का जो लास्ट टाइम भी हमने देखा था काफ़ी अच्छा है, इस बार भी अच्छा है। माई मैन सिंह मेडिकल कॉलेज, 6 स्टूडेंट्स ने अपेयर किया था, ऑल 6 हैव पास, 100% पासिंग परसेंटेज, वेरी गुड। नाउ कंट्री वाइज में आप देखिए, कंट्री वाइज में 2015 से 2018 में बांग्लादेश का अराउंड 27% था, विच इज आई थिंक द हाईएस्ट अमंग ऑल द कंट्रीज। एंड इन 2019 स्क्रीन टेस्ट का रिजल्ट में 35% था अमंग ऑल द कंट्रीज, सो इट इज द सेकेंड हाईएस्ट। सो बांग्लादेश का जो परफॉर्मेंस है इट इज क्वाइट कंसिस्टेंट, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है अमंग ऑल द मेडिकल कंट्रीज जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। नाउ द फीस में क्या है बांग्लादेश का, आई एम टेलिंग यू द टोटल फीस एंड व्हाट यू हैव टू पे इन द फर्स्ट ईयर। बांग्लादेश में मैक्सिमम कॉलेजेस में क्या होता है कि दे आस्क फॉर 50% ऑफ द ट्यूशन फी इन द फर्स्ट ईयर, दिस इज अ बिट ऑफ प्रॉब्लम। तो आपको फर्स्ट ईयर में 50% ऑफ द फीस देना पड़ेगा, बाकी इंस्टॉलमेंट में हो जाएगा। एंड जो 50% भी फीस है आपको 1 साल के अंदर देना पड़ेगा, ये नहीं कि आपसे एक बार में मांग लेगा। सपोज आपको 15 लाख रुपीज़ देना है तो आप 10 या 7-8 लाख रुपीज़ दे के आप अपना सीट का बुकिंग कर लीजिए, और बाकी पैसा के लिए आपको 6 मंथ्स या 1 ईयर का टाइम देगा, उसके अंदर आप दीजिए। जैसे आई गिव वन एग्जांपल, बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज टोटल फीस ओवर अ पीरियड ऑफ 6 years इज $40,000, इंडियन करेंसी में होता है आपका 30 लाख रुपीज़, ठीक है। 30 लाख रुपीज़ में $20,000 आपको फर्स्ट ईयर में देना पड़ेगा, दैट्स मतलब 15 लाख रुपीज़। बांग्लादेश में मैक्सिमम कॉलेजेस में आपका फीस के अंदर हॉस्टल भी इंक्लूडेड रहता है, एंड फूड इज एक्स्ट्रा। फूड के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 5,000 to 6,000 इंडियन करेंसी में लगेगा पर मंथ, ओके। सो दीज आर द फी स्ट्रक्चर्स, लाइक ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज $48,000, 36 लाख रुपीज़। होली फैमिली 37 लाख रुपीज़, टोटल फीस मैं बोल रहा हूँ। जहूर इस्लाम, वेरी गुड। हेलो यस सिद्धत सर, यस सर। बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज जो आप बताया 40,000 वो मिसिंग हो गया, 45,000 है। और फीस इंक्रीज हो गया, ओके सर, ठीक है, मैं इसका फीस चेंज कर दूंगा। उसका 45,000 है और फर्स्ट ईयर है 25,000। ओके सर, थैंक यू सर। और एनीथिंग एल्स सर? नो सर। ओके सर। ग्रीन लाइफ का आप देखिए, आपका फीस है 30 लाख रुपीज़, बीसीजी ट्रस्ट का 25 लाख रुपीज़, डेल्टा मेडिकल कॉलेज का 33 लाख रुपीज़, पॉपुलर का 33 लाख रुपीज़। सो व्हाट यू कैन सी दैट बिटवीन 30 एंड 38 लाख रुपीज़ में आपका हो जाएगा मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस का फीस एंड हॉस्टल। सम कॉलेजेस में हॉस्टल का एक्स्ट्रा लेता है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज में it is included. Now, good medical colleges of Bangladesh are Bangladesh Medical College, Dhaka National Medical College, Holy Faith, Zahur Islam Community-Based Medical College, Ibrahim, Green Life, BCG Trust, Delta, Universal, Popular. इसको छोड़ के और भी काफ़ी सारे colleges हैं which you can have a look. And if there are girls, try to go to a गर्ल्स मेडिकल कॉलेज जहाँ पर ओनली गर्ल्स का एडमिशन होता है, बिकॉज उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। हेलो, यस बोलिए सर। गर्ल्स के लिए फीस स्ट्रक्चर बताइए सर, ओनली गर्ल्स कॉलेज के लिए। ओनली गर्ल्स कॉलेज के लिए गर्ल्स कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर सर आपके पास है? युग वो बता रहे जो मेरे पास आपके पास मेरे पास है, बता। बोलिए बोलिए। सिलेट वुमेन्स मेडिकल कॉलेज है, बहुत अच्छा कॉलेज है, सिलेट में है, और सिलेट यूनिवर्सिटी। उसका जो फीस है $38,000 है इंडियन करेंसी में। इंडियन करेंसी में बता दीजिए। इंडियन करेंसी राइट नाउ 28 लाख। कितना? ओके, विद हॉस्टल सर, विदाउट हॉस्टल? इंक्लूडिंग हॉस्टल। इंक्लूडिंग हॉस्टल, फूड फैसिलिटीज एक्स्ट्रा है सर, है ना? हाँ, फूड एक्स्ट्रा। अच्छा, और कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस फीस वगैरह सर, कुछ डोनेशन या कुछ इस तरह से डेवलपमेंट या कुछ नहीं सर।
कुछ नहीं है सर? नहीं नहीं, इस कॉलेज का मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छा कॉलेज है, सिलेट वुमेन्स मेडिकल कॉलेज है और ये हम्म, 2006 साल से इस्टेब्लिश्ड हुआ है। और जी। ये शाहजलाल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है। काफ़ी हम्म, सारे स्टूडेंट इसका निकल चुका है जो फॉरेन। जी। इसका और फर्स्ट ईयर, इसका हाउ फर्स्ट मेनी ईयर। सीट्स इन हाउ मेनी सीट्स इन एमबीबीएस फर्स्ट ईयर? सॉरी सर। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में कितनी सीटें हैं एक साल में, पहली साल? पहली साल तो ये तो नहीं है, नहीं टोटल जो नहीं, सीट है, टोटल टोटल सीट है। टोटल सीट का 50% फॉरेन स्टूडेंट लेता है, 50% लोकल स्टूडेंट लेता है। ओके, नहीं सीट कितनी है सर, जैसे कितनी बच्चे 100 है, 200 है, इस तरह से? नहीं नहीं, वो 100 सीट है। 100, ओके ओके, थैंक 100 सीट्स है तो फॉरेन स्टूडेंट्स लोग के लिए 50 सीट्स है। ओके सर। यस सर। एंड यू। ओके। तीन और चार ढाका में भी कुछ कॉलेज है जो आपको आउटसाइड ऑफ ढाका है, सिलेट। अगर प्रॉपर ढाका में लेना चाहते हैं तो ढाका में भी कुछ कॉलेज है जो वुमेन्स मेडिकल कॉलेज है। अच्छा सर, हम एक दो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। युग जी, आप भी हमको आंसर करिएगा। अच्छा, एक स्टूडेंट ने हमसे पूछा है कि नीट इज एग्जेम्प्टेड दिस ईयर फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, तो नीट एग्जेम्प्टेड है कि नहीं बताइए। Yes, sir. This year NEET is exempted. Means a student need to give the NEET either in 2020 or 2021. He need to appear for the exam and qualify. Either in 2020 or 2021. He can go this year without NEET, but he need to appear for NEET in next year and need to qualify. तो ये जो रूल है सर, ये रूल ओनली फॉर फॉरेन एडमिशन है ना, कि Abroad is- ओनली फॉर फॉरेन? Right. Yeah. Only for foreign ओनली फॉर students. फॉरेन एडमिशन। ओके। तो ये मेरे पास कुछ फोटोज है ऑफ मेडिकल कॉलेजेस इन बांग्लादेश। जरूर इस्लाम का है, बहुत अच्छा कॉलेज है यहाँ पर। डेल्टा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का ये है फोटो। इंडियन फेस्टिवल्स सेलिब्रेट होता है, तो होली है, दिवाली है, काली पूजा है, दुर्गा पूजा है, सब वहाँ पर सेलिब्रेट होता है। गर्ल्स के लिए भी काफ़ी सेफ कंट्री है बांग्लादेश में। एक चीज़ मैंने देखा है कि वहाँ पर ब्यूटी पार्लर्स बहुत बहुत ज़्यादा है, ब्यूटी पार्लर्स बहुत ज़्यादा है। वहाँ के गर्ल्स लोग को ब्यूटी पार्लर्स में जाने का बहुत शौक है। रियली इतना ब्यूटी पार्लर्स मैंने कभी भी नहीं देखा जितना बांग्लादेश में देखा। हाँ, एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक चीज होता है सार्क कोटा। इसमें मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग मिसगाइडेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सार्क कोटा क्या होता है। सार्क कोटा होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। सार्क में कंट्रीज जो आते हैं वो है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका एंड मालदीव्स। These countries offer scholarship to other member country students in order to encourage further studies. मतलब ये सब कंट्रीज में कुछ आपस का पैक्ट है, जिससे एक कंट्री का स्टूडेंट दूसरे कंट्री में जाके स्टडीज कर सकता है। और सार्क कोटा के अंदर बांग्लादेश ने इंडियंस को कुछ सीट्स दिया है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। Every year, Ministry of Health and Family Welfare, Government of Bangladesh, provides admission to इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड डेंटल कॉलेजेस। तो इंडिया के लिए इन्होंने 21 सीट्स दिया एमबीबीएस के लिए एंड 4 सीट्स दिया बीडीएस के लिए। तो ये आप बांग्लादेश गवर्नमेंट या बांग्लादेश एम्बेसी का वेबसाइट के थ्रू जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्लास 10 एंड 12 का मार्कशीट सबमिट करना पड़ेगा। वो लोग दोनों का 10 एंड 12 का मार्कशीट कैलकुलेट करके कितना टोटल मार्क्स है उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट निकालेगा। ठीक है, और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे एजेंट्स लोग न्यूज़पेपर में ऐड करते हैं या बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिसगाइडेंस करते हैं कि उनके थ्रू आपको सार्क कोटा का सीट मिल जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, इसमें एजेंट का कोई रोल नहीं होता है। आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को थ्रू देयर वेबसाइट, बांग्लादेश गवर्नमेंट को अप्लाई करिए। अगर आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, 99% है, 98% है, 95 के ऊपर है, तो आपको कुछ चांस है, आपको सीट मिल जाएगा। अदरवाइज ये सब सीट पाने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। इसमें कोई कोटा सिस्टम नहीं है, कोई हेरा फेरी नहीं है। अगर आप डिजर्व करते हैं आपको जरूर मिलेगा।
और कोई एजेंट इसके अंदर आपको अंदर जाके नहीं कर सकता है। हाँ, मैं एक चीज जरूर बताऊंगा कि 2-3 साल पहले एक स्कैम हुआ था, तो प्लीज आप स्कैम में मत पढ़िएगा। 2-3 साल पहले एक स्कैम हुआ था सार्क कोटा लेकर। आई रिमेम्बर कश्मीर का कोई एजेंट क्या किया था, डुप्लीकेट मार्कशीट बना के बांग्लादेश गवर्नमेंट में सबमिट कर देना था। तो न्यूज़पेपर में आया था, बहुत कंट्रोवर्सी भी हुआ था कि एक स्टूडेंट था कश्मीर का जिसको बहुत अच्छा मार्क्स आया था, 100 आया था, उसका एडमिशन नहीं हुआ, या 198 ऐसे कुछ मार्क्स आए थे, उसका एडमिशन नहीं हुआ। तो उसने न्यूज़पेपर में गया, उसने बांग्लादेश एम्बेसी को कांटेक्ट किया कि सर मेरा एडमिशन नहीं हुआ, बाकी बच्चे लोग का कहाँ से हो गया, और उसके फ्रेंड्स लोग का हो गया जिनका बहुत कम मार्क्स आया था। तब जाके मालूम चला कि कुछ एजेंट्स लोग डुप्लीकेट मार्कशीट बना के सबमिट करे थे। तो प्लीज आप ये सब चीज में मत पढ़िएगा। यू कैन अप्लाई डायरेक्टली, नो एजेंट कैन हेल्प यू फॉर सार्क कोटा सीट। नाउ चेकलिस्ट टू स्टडी एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। अगर आप अब्रॉड जाते हैं तो ये सब चीज अपने माइंड में रखिएगा कि टोटल बजट कितना है, टोटल एक्सपेंस कितना है उस कंट्री का, उस कॉलेज का, उसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। एंड 2 लाख या 3 लाख रुपीज उससे एक्स्ट्रा अपने बजट में रखिए, बिकॉज अनफोर्सिन कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकता है। उस कंट्री का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैसा है, किस लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, लोकल लैंग्वेज क्या है, लोकल लैंग्वेज सीखना बहुत जरूरी होता है। परसेंटेज ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश इन दैट कंट्री, अकोमोडेशन कैसा है, इंडियन फूड मिलता है कि नहीं, वेजिटेरियन फूड मिलता है कि नहीं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसा है, क्वालिटी ऑफ फैकल्टी कैसा है, एमसीआई का स्क्रीनिंग टेस्ट का क्या रिजल्ट है, रेफरेंस आप पूछे किसी स्टूडेंट का जो वहां पढ़ाई कर रहा है, एक्स स्टूडेंट्स का क्या रेफरेंस है, मेडिकल टूरिज्म ऑफ दैट कंट्री कैसा है। अगर उस कंट्री का मेडिकल टूरिज्म अच्छा, मतलब उस कंट्री में बाहर के पेशेंट्स आते हैं, इसका मतलब वहाँ का मेडिकल क्वालिटी, एजुकेशन, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज अच्छा है। मिसलेनियस कॉस्ट कैसा है, कितना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना है, सेफ्टी कैसा है, ड्यूरेशन कितना साल का है, एमसीआई उसका इंटर्नशिप को रिकॉग्नाइज करता है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कॉलेज कैसा है, पॉपुलेशन ऑफ सिटी कैसा है। जैसे मैंने आपको बांग्लादेश में एक चीज और चीज बताना भूल गया, बांग्लादेश का डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। इसका मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में जितने लोग रहते हैं बांग्लादेश में, जितने ज्यादा लोग रहते हैं उतने पूरे वर्ल्ड में नहीं रहते। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन बांग्लादेश में बहुत हाई है, इसलिए आपका वहां पर पेशेंट्स भी बहुत मिलते हैं। ये आपका बहुत एडवांटेज पॉइंट है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेलेक्ट द कंट्री अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड योर कंस्ट्रेंट। अगर आपका फ्रेंड कोई कंट्री में जा रहा है या कोई कॉलेज में जा रहा है तो आप भी ब्लाइंडली उसको मत फॉलो करिए। मे बी उसका बजट आपसे ज्यादा है, मे बी उसका फाइनेंशियल कंडीशन और अच्छा है, मे बी उस कंट्री में उसका कोई रिलेटिव रहता है, उसको और कुछ मालूम है। सो यू शुड चूज द कंट्री एंड कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड उसका क्या कंट्री का परफॉर्मेंस, और जो मैंने आपको 17 पॉइंट्स दिया है उसके हिसाब से यू कैन। अमीर सर को भेजिए। हेलो। यस सर, हेलो, पूछिए सर। मुझे ये बताइए कि फर्स्ट स्टेप पेमेंट का कितने डॉलर का होगा? युग जी बताइए, आंसर करिए। हेलो, Mute है। आप अपना प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट स्टेप में मुझे कितने डॉलर पेमेंट करने होंगे और किसको करने होंगे? मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। शेख जी आप आंसर कर दीजिए। बसरुद्दीन जी हाँ, आप हेलो आंसर। सर। हाँ हेलो। हाँ, तो मैं ये मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फर्स्ट स्टेप में कितने डॉलर्स पेमेंट करना होगा मुझे और किसको करना होगा? ओके सर, एक्चुअली आप जिस कॉलेज को चूज कीजिएगा, ओके सर, ठीक है, ओके उस जी। कॉलेज का टोटल फीस होता है। उस कॉलेज के हम्म, फीस के हिसाब से जो ऑफर लेटर होता है, उस ऑफर लेटर जी। में मेंशन होता है। किसी कॉलेज का मान लीजिए $30,000 है और उसका फर्स्ट ईयर फीस है $10,000 है, तो उस कॉलेज का आप $2,000 सीट बुकिंग कर सकते हैं, या वो आपके अकाउंट से या स्टूडेंट के अकाउंट से या स्टूडेंट का पेरेंट के अकाउंट से डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट पे जाएगा टीटी के थ्रू, जो टेलीग्राफ ट्रांसफर होता है। ठीक है सर। तो उसको इंडियन गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी?
नहीं, कुछ नहीं लेने पड़ेगी। जो वो बच्चों का एडमिशन लेटर आता है, उस बच्चों का पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, और अच्छा कॉलेज का ऑफर लेटर होना चाहिए। ठीक है सर। और पेरेंट्स का अकाउंट में जाएगा, पेरेंट के अकाउंट से कॉलेज के अकाउंट पे जाएगा, तो पेरेंट्स का भी आधार कार्ड या पैन कार्ड, ये दोनों होना चाहिए। ठीक है सर। वो डिपेंड करता है कॉलेज के। अच्छा। ऑफर लेटर हमें कैसे मिलेगा? ऑफर लेटर जैसे ऑफर लेटर जो होगा वो ऑफर लेटर मतलब जैसे सिद्धार्थ कैसे? जायसवाल है, जो नेशनल विद्या फाउंडेशन है। जैसे मैंने सपोज एग्जांपल फॉर एग्जांपल मैंने ढाका मेडिकल कॉलेज के लिए ढाका मेडि मेडिकल कॉलेज के लिए मैं अप्लाई ढाका कर रहा हूँ। ढाका मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है नेशनल। सर। ढाका मेडिकल हाँ कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है। वहाँ का लोकल जी कंट्री का जो एग्जाम होता है, जैसे हम लोग का इंडिया का नीट एग्जाम होता है सर, जी। उस तरह वहाँ का भी एक लोकल एग्जाम होता है। उसमें जो रैंक होता है गवर्नमेंट का काउंसलिंग के थ्रू वो बच्चा पढ़ सकता है। और हमारा जो सार्क का कोटा होता है, सार्क कोटा इंडियन के लिए जो 21 सीट होता है, अगर आपका बच्चे का 95% से अबव नंबर है 10-12 में, तो आप भी उसको अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मेरिट के हिसाब से वो अगर काउंसलिंग में आ जाएगा तो आपको ढाका मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। अदरवाइज 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 आपको सुनाई दे रहा सर? हाँ सुनाई दे रहा है। अदरवाइज आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, इसमें कितने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं जितनी लिस्ट आपने प्रोवाइड की है अभी? 36 कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज होल बांग्लादेश में। अच्छा 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 अच्छा। ये ख्वाजा वाला जो है ये भी गवर्नमेंट है? नहीं, प्राइवेट कॉलेज है, ख्वाजा यूनिस वाली। ख्वाजा यूनुस का जो है ये। ओके ओके। और सबसे जो ज्यादा सीट बुकिंग आता है वो ढाका जी नेशनल मेडिकल कॉलेज और हॉली फैमिली रेड क्रिसेंट। इसमें तो क्या है जो जी हाँ, इसमें ऑफर लेटर जो आता है उसका जी फर्स्ट ईयर फीस है। जैसे ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट ईयर फीस है आपका $30,000। तो आपको ठीक सीट बुकिंग के लिए $10,000 देना होगा। ठीक है। और जी। बाकी आपको हर महीना के लिए $300 देना होगा। वो आप हर महीना में भी दे सकते हैं, 3 महीना के बाद भी दे सकते हैं, 6 महीने के भी बाद दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपका फ्लेक्सिबल। नहीं तो आप हमें क्या फैसिलिटी देंगे? मतलब आपका जो रोल होगा वो क्या होगा? पहले तो आप एक काम कीजिए, जो हम लोग का प्रोग्राम चल रहा है 10th और 12th का ईयर ऑफ पासिंग बताइए। हाँ तो वो सही है, हमारा लास्ट ईयर का है 19 का। 19 का है तो 19 का है और उससे 2 साल पहले का हाई स्कूल हाँ का हाँ, है। 19 का है 12, तो मतलब 17 का होगा 10th। तो यस यस। एक्चुअली दिस इज द लास्ट चांस टू गेट एडमिशन MBBS इन बांग्लादेश 2010 एंड 21 सेशन। ओके सर। ओके ओके। वो GPA कितना है वो आप चेक किए अब हैं या? जीपीए हमारा ओवरऑल हमारा जो है 86% है। जीपीए ओवरऑल से इंटर नहीं, वैसे नहीं होता है। अब 86% ओवरऑल सब्जेक्ट्स में है और अबव 75% जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में है। उसमें नहीं होता है सर। आप एक काम कीजिए, सर मैंने आप जो नहीं बायोलॉजी नहीं, में जो सर आपने बताया था कि फिजिक्स में 60% से ऊपर होना चाहिए वो मेरा 75 प्लस में है हाँ सर, नहीं, इंटरमीडिएट में। हाँ, मुझे 1 मिनट टाइम दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप फिजिक्स में कितना बोलिए? जी फिजिक्स में कितना बोलिए? ये हमारा 78 है। 78 है तो 4 हो गया। बायोलॉजी में कितना और है? बायोलॉजी में 77 है। तो वो भी 4 हो गया। और हो गया। आप बोलिए केमिस्ट्री में कितना? और केमिस्ट्री में भी 76 है। तो आपका GPA 4 हो गया 12 में। आप 10 का 5 सब्जेक्ट मुझे बताइए, सबसे टॉप 5। उसमें भी हमारा 76% है ओवरऑल। ओवरऑल नहीं चाहिए सर सर, मुझे ओवरऑल नहीं ईच होगा। सब्जेक्ट। टॉप आप टॉप 5 सब्जेक्ट। हाँ, आप टॉप 5 सब्जेक्ट बताइए और एडिशनल सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जो एडिशनल सब्जेक्ट होता है उसमें नहीं हाँ होगा कैलकुलेशन। आपका 12 का GPA है 4 आउट ऑफ 5। जी जी जी।
ठीक है, आप 10th का बताइए तो मैं आपको बता दूंगा। नहीं, वो मैंने कैलकुलेट किया है, वो 7 से ऊपर ही जा रहा हमारा दोनों का, जो हमने और नेट। आपका 7 से आ रहा है तो हो सकता है हम लोग एक्यूरेट कैलकुलेट करेंगे, उसको 8 भी आ जाएगा। जैसे हाँ 8 आ सकता है जी। हाँ, तो 8 आ जाएगा। आप बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज और जहीरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज और इब्राहिम मेडिकल कॉलेज, ये 3 कॉलेज छोड़ के किसी भी कॉलेज आप चूज कर सकते। अच्छा 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 अच्छा। ये 3 कॉलेज के लिए आपको जीपीए 9 के अबव होना चाहिए, 9 एंड अबव। जी 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 जी, ठीक है। तो फर्स्ट हमें जो है वो सबसे पहले जो है वो आपको कांटेक्ट करना होगा। हाँ, नेशनल विद्या फाउंडेशन जो सिद्धार्थ जायसवाल है। सर मैं जी। बता रहा हूँ, एक सेकंड बसुद्दीन सर। सर आप क्या करिए ना कि आप जी जो मार्कशीट है आप हम लोग को भेज दीजिए ईमेल आईडी में या व्हाट्सएप में, ठीक जी। है। तो हम लोग आपका कॉलेज को भेज के आपका जो एडमिशन लेटर है वो मंगवा देंगे, ठीक है। एक बार कॉलेज से एडमिशन लेटर आता है उसके बाद जी उसके अंदर सब डिटेल्स रहेगा कि आपको कॉलेज का अकाउंट डिटेल्स रहेगा, कितना पैसा जमा करना है, कितना फीस है, सब कुछ लिखा रहेगा। तो उस हिसाब से अच्छा अच्छा अच्छा। आप वो चिट्ठी ले जाके आपका जहां पर बैंक है बैंक को दिखाइए। हाँ, बैंक आपका स्विफ्ट ट्रांसफर होता है, वो बैंक कॉलेज के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा, जी तो आपका ठीक सीट बुकिंग हो जाएगा। फिर आप बाकी ओके। डॉक्यूमेंट हम लोग को देंगे तो बोलिए। वो तुम बोल के मेरे पास व्हाट्सएप का मोबाइल है। वो व्हाट्सएप नंबर मेरा है 8100। जी अरे वो तुम बोल के वो कोई नहीं वो छोटा जो होगा। हेलो। हाँ हेलो। 8100 फोटो वो हम उस पे आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। हाँ 8100 मेरा व्हाट्सएप 256 जी। लिखिए। ओके ओके। और एक चीज आप नोट कर लीजिए सर, अगर बांग्लादेश प्लान है तो आपका यही लास्ट ईयर है। अब फिलहाल तो 13 को पेपर दे दें, उसके बाद हम हाँ दे दीजिए, दे हाँ दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीट के 13 बाद ही को आप प्लान कीजिए। अगर जी। हो सकेगा आपका बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट करे, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगा तो बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग नहीं, एक साल कोचिंग किया है, एक साल तैयारी की है ओके, कहाँ की है सर? लखनऊ में। ओके, वेरी गुड। तो हम लोग क्विज कर रहा है और बेस्ट ऑफ लक, आपको बच्चे का अच्छा रिजल्ट हुए या गवर्नमेंट सीट मिल जाए तो भी थैंक हम यू लोग बहुत खुशी है। हम लोग को मिठाई खिलाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या वालेकुम नाम है आपका? मेरा अनीसुल हसन। ठीक है सर, सीधे शहर से आप कांटेक्ट कीजिए उस नंबर पे, आपको जी जी पूरा जी। पूरा हेल्प मिल जाएगा। और मैं 5 भी साल। टीचर हूँ एक, और अच्छा अच्छा, तो जी मैं अपने बेटे के लिए बात कर रहा वेरी गुड सर। ठीक है। नहीं वेरी गुड सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप आपको आप लोग 5 साल का पूरा सर्विस मिलेगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा। आपको ओके बच्चे ओके के जो भी जरूरत होगा सर्विस हम लोग देंगे जी इंशाल्लाह। सर एंड सर एक सेकंड, हम जी। लोग के पास मतलब कुछ क्वेश्चंस और आया फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो मैम प्लीज आप क्वेश्चंस पूछिए। विधि मैम, युग जी आप आंसर करिएगा ये वाला क्वेश्चन को प्लीज। हम करेंगे या भक्ति सर करेगा? भक्ति सर करेगा। बेहती सर एक क्वेश्चन का आंसर करेगा, एक क्वेश्चन आप करिए। कोई दिक्कत सर, आप क्वेश्चन ठीक है ठीक। पूछे मैम। थैंक यू सर। वन जी सर, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि फर्स्ट ईयर का एडमिशन एक्सपेंडिचर क्या होगा, अप्रोक्सीमेशन। 8 से 12 लाख रुपया, 8 to 12 lakhs। सर इसमें फूड इंक्लूडिंग होगा, मतलब हॉस्टल एंड फूड, या एक्सक्लूडिंग? मैम डिपेंड करता है बच्चों पर कि बच्चे कौन से कॉलेज में जा रहे हैं, एंड हॉस्टल इंक्लूड होता है या नहीं होता है, वो कॉलेज पर भी डिपेंड करता ये है। फोटो नहीं जा रहा। हाँ, तो अगर बच्चे की कोई चॉइस है उसके मार्क्स पर डिपेंड करते हैं। अगर बच्चे की कोई चॉइस है तो उस हिसाब से वी कैन गाइड देम ईयरली। सर वो सेफ्टी के लिए पूछ रहे थे कि बांग्लादेश कितना सेफ है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बांग्लादेश 100% सेफ है। वहाँ पे जो हॉस्टल्स रहती है वो इन कैंपस रहती है। और सेकेंड थिंग, अगर बच्चे थोड़े से भी अफ्रेड है तो बच्चे विजिट कर सकते हैं बांग्लादेश। दे आर फ्री टू गो बांग्लादेश, बहुत इजी वीजा।
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। शेख जी आप आंसर करिए, उनका आवाज नहीं आ रहा। समझना चाहते हैं। बोलिए मैम, आप बोलिए, क्वेश्चन कीजिए, मैं आंसर। जी सर, वो क्वेश्चन है कि क्या स्टेटस है इंडियन स्टूडेंट्स का सिक्योरिटी को लेकर। एक्चुअली ये स्टूडेंट राजस्थान से हैं। अच्छा, तो राजस्थान का बहुत स्टूडेंट प्राइम मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। राजस्थान का जो फर्स्ट चॉइस होता है प्राइम मेडिकल कॉलेज, जो राजशाही यूनिवर्सिटी है राजशाही का। पहली बात तो है सिक्योरिटी के है, तो गर्ल्स एंड बॉयज का हॉस्टल अलग अलग होता है। उसमें एक चीज जो होता है, मम्मी पापा को भी उसको डॉक्यूमेंट्स दिखाना या उसको इंश्योर करना होगा जो उसका बच्चे का यही फादर है या मदर है, तभी मिलने देता है और सिक्योरिटी रहता है। हम काफ़ी बार जा चुके हैं बांग्लादेश में, हमारा स्टूडेंट बहुत सारे हैं, हम लोग वहाँ मिलते हैं, तो वहाँ फ़ोन करना पड़ता है तो बोलता है ठीक है हमारा रिलेटिव है, हम पहचानते हैं, तभी मिलने देता है। और पढ़ाई के लिए जाता है तो पढ़ाई के जो मेडिकल जो कॉलेज होता है 8 से 2 बजे कॉलेज होता है, उसके बाद तो बच्चे सो जाता है, उसके बाद फिर पढ़ाई शुरू करता है। वो बाहर जाने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो सिक्योरिटी 100% सिक्योरिटी है यार। वहाँ का जो हमारा इंडिया एम्बेसी है वो भी टच में रहता है। सर एक और क्वेश्चन है कि इंडियन फूड या विद वेजिटेबल सिक्योरिटी कैसा है, वेज फूड मिलेगा? सुरक्षा कैसा है, अनाज कैसा लोग हाँ, लोग अपने यहाँ राजस्थान बांग्लादेश में बहुत सारा बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट है, उसमें वेज भी मिलता है और नॉन वेज भी मिलता है। तो सर प्योर राजस्थान के लोग। सर मुझे एक क्वेश्चन है, तेहरान यूनिवर्सिटी के बारे में बता सकते हैं क्या? कौन सा यूनिवर्सिटी? तेहरान यूनिवर्सिटी। इस तरह यूनिवर्सिटी क्या, और एक बार बताइए यूनिवर्सिटी का नाम बांग्लादेश का क्या है? TEHRAN। ये बांग्लादेश का तो इस तरह यूनिवर्सिटी नहीं सुना मैंने। ओके। इस नाम की तो कोई एंड सर एक और स्टूडेंट ने पूछा है कि 9 GPA जहरूल इस्लाम में चाहिए और किस किस कॉलेज में चाहिए? जहरूल इस्लाम में 9 चाहिए, बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज में 9 चाहिए और इब्राहिम मेडिकल कॉलेज। ओके सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर, वेलकम मैम। और क्या क्वेश्चन है? तेहरान के बारे में, तेहरान मेडिकल कॉलेज के बारे में आप जानते हैं? युग जी आप जानते हैं क्या कुछ? इस नाम का कोई कॉलेज है बांग्लादेश में? नो सर, मैंने बांग्लादेश में कॉलेज नहीं, बांग्लादेश में तो नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी का पूछे प्लीज। हेलो। यस सर। तहसीलदार की उसाई लगी। हेलो। हाँ सर पूछिए। आगे बता तहसीलदार राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ रहते ऊपर गया एक मैडम जी सर आप क्वेश्चन पूछिए। काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बाकी लोग म्यूट कर दें। सर आप प्लीज अपना नाम बताएंगे? राजस्थान से बोल रहा हूँ मैं, रजनीश व्यास। जी सर बताइए। हाँ, कि बांग्लादेश में कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या इस तरह का भी कोई प्रॉब्लम होती है कि हिंदू बच्चे राजस्थान से जाएं या गर्ल्स जाएं या मुस्लिम बच्चे यहाँ ज्यादा होते हैं या इंडिया के बच्चे जाते हैं तो वो किस कम्युनिटी के होते हैं, ये इस तरह के डाटा या इस तरह कुछ आप बता सकते हैं? बिल्कुल सर, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता। जातिवाद होते हैं राजस्थान। युग जी आपका ना वॉइस या आपका अनक्लियर है। एंड सर आप जो राजस्थान, मेरी आवाज आ रही है? हाँ युग जी आप आंसर करिए। युग जी राजस्थान के, ठीक है? तो ये राजस्थान के से काफी सारे बच्चे भेज चुके हैं बांग्लादेश, तो ये क्वेश्चन आप आंसर करिए युग जी। सर बांग्लादेश में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी राजस्थान से हूँ, आई एम फ्रॉम बीकानेर। तो बच्चे वहां पर जाते हैं। हाँ मैं नापासर से हूँ, बीकानेर के पास में गांव है नापासर, बेसिकली आई एम फ्रॉम देयर। तो मैं बांग्लादेश विजिट किया हूँ और बच्चों को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर या कोई रिलीजन को लेकर कोई कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छी कंट्री है, एजुकेशन वाइज, सेफ्टी वाइज सब कुछ अच्छा है। तो कहीं भी डोमिनेंस नहीं है कि मुस्लिम कंट्री है तो बच्चा हिंदू बच्चा जाएगा या अपने राजस्थानी बच्चे जाएंगे तो कुछ दिक्कत हो खाने को लेकर, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे वहां पर जो भी जा रहे हैं सब पढ़ने के लिए जा रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो एजुकेटेड बच्चे हैं जिनके मार्क्स अच्छे हैं उनको ही बांग्लादेश में
करने को मौका मिलता है, सिंपली बात है, एमबीबीएस करने के लिए मौका मिलता है। तो एक अच्छा लेवल, एक अच्छा एनवायरनमेंट है कॉलेज के अंदर भी, कहीं दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है अपना। ओके सर, थैंक यू। या सर, थैंक यू सर। और सर पूछिए, मिस्टर खान, आपका कोई क्वेश्चन है या किसी और का क्वेश्चन है? रिया मैम, युक्ति मैम, पूछिए। एनी अदर क्वेश्चंस? मैम आपका कोई क्वेश्चन है? अच्छा, तो हम लोग, हेलो सर। हाँ सर पूछिए। हेलो, पूछिए सर। सर मैं पूछ रहा हूँ, एक बार जीपीए कैलकुलेट करने के बारे में बताएंगे क्या? सर जीपीए वाला मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना मार्कशीट हमको भेज दीजिएगा। जीपीए वाला मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए मैं स्लाइड लेके आ रहा हूँ। सर सबसे पहले आप ये देखिए, आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है मेरा? यस यस। सर देखिए, ये मार्क्स का आपका है। अगर 100 से 80 मार्क्स आया कोई सब्जेक्ट में तो जीपीए 5 है, 79 से 70 आए तो जीपीए 4 है, 69 से 60 आए तो जीपीए 3.5 है, 59 से 50 आए तो जीपीए 3 है, 49 से 40 है तो जीपीए 2 है। ठीक है। अच्छा, मिनिमम जो है बांग्लादेश में एडमिशन के लिए 3.5 चाहिए ना? नहीं 3.5 नहीं चाहिए सर आपको। तो क्लास 10 और 12 का, क्लास 10 और 12 का जीपीए मिला के 7 होना चाहिए। 10th और 12th मिला के? हाँ जीपीए। तो ये सर प्लीज, मैं ये पूछ रहा हूँ, ये क्राइटेरिया क्या, 100 to 85 कैसे हो गए, जीपीए कैसे हो गए, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं ये जो क्राइटेरिया ना बांग्लादेश गवर्नमेंट ने बनाए हैं। सपोज आपका बायो में 80 मार्क्स आया है तो इसका मतलब आपका जीपीए 5 हो गया। अच्छा, ओके। ये गवर्नमेंट ने बनाया, वहाँ की गवर्नमेंट का ये कैलकुलेशन, इसको करना। ठीक है सर। तो आप अपना मार्क्स दीजिए, हम लोग जीपीए कैलकुलेट कर लेंगे और आपको बता देंगे। ठीक है। एंड एक दो और क्वेश्चन का मैं आंसर कर देता हूँ जो लोग। सर मैं क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ, प्लीज। पूछिए। हेलो, मैं कह रहा था, एक कॉलेज के लिस्ट में एक नाम था एएफएमसी। क्या नाम था? हेलो, क्या नाम था? एएफएमसी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज। हाँ सर। हाँ। वो गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है? हेलो शेख जी बताइए। शेख जी एक सेकंड आंसर कर रहे हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। अच्छा, तो इसमें जो आप दिखा रहे थे कि 0% पासिंग रेट, क्या है ये? मैं समझ नहीं पाया था, ये थोड़ा सा मैं लेट ज्वाइन किया आपको ना। सर देखिए ये क्या है ना, ये ऐसे मत आप देखिए, ये है कि जब बच्चा फॉरेन जाता है, फॉरेन के बाद जब इंडिया वापस आता है ना तो उसको एक एग्जाम देना पड़ता है जिसको हम समझ रहा हूं, स्क्रीनिंग टेस्ट। तो यस इस कॉलेज से बस एक ही बच्चा अपियर किया था, एक ही बच्चा अपियर किया था लास्ट ईयर 2019 में। हाँ, तो इसमें एडमिशन, फॉरेन स्टूडेंट्स की एडमिशन कितनी रहती होगी एएफएमसी में, ये पूछ रहा हूँ। बताइए सर। शेख सर बताइए। चलिए, वो तो डिपेंड करता है कितने साल से वो फॉरेन लेना शुरू किया है। अगर उसका कॉलेज में फॉरेन स्टूडेंट हो सकता है फर्स्ट ईयर में 20 है, 10 है, 10 है, अब जब निकल जाएगा तब वो एग्जाम बैठ सकता है सर। ओके। है तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ना ये? नहीं, इसका स्टैंडर्ड क्या है? जैसे आप कई कॉलेजों के नाम बता रहे थे, ये बेटर है, ये बेटर है, ये बेटर नहीं है, तो इस तरह से एफएमसी का लेवल कहाँ आता है? एफएमजी का लेवल तक देखिए तो जहरुल इस्लाम बेटर है अकॉर्डिंग टू रिजल्ट के हिसाब से हम देखेंगे तो। नहीं, आप रिजल्ट अकॉर्डिंग टू रिजल्ट मींस स्क्रीनिंग टेस्ट रिजल्ट बात कर रहे हैं ना? हाँ सर, स्क्रीनिंग टेस्ट का ही बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे इंडिया में अगर स्क्रीनिंग एमसीआई का होता है तो उसमें जो पासिंग आउट रेट है उसके अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हैं इनकी कॉलेजेस की? हाँ सर आपका नाम समीर खान है सर? ना, मेरा बेटे का नाम है, वो अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं ज्वाइन कर रखा है। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम आरिफ है। अस्सलाम वालेकुम सर। आप एक इंफॉर्मेशन दीजिए, आपका 10th का ईयर ऑफ पासिंग बताइए या 12th का ईयर ऑफ पासिंग बताइए। 12th तो इसी साल हुआ 2020 में, 2020 में, और 10th है 2018 में। यस।
आपका परसेंटेज कितना है? 80%। 80% नहीं, फिजिक्स में कितना है, केमिस्ट्री में कितना है? ये तो अभी मैं बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं जो है थोड़ा सा उसके पेपर्स कहीं और हैं, मैं कहीं और बैठा हूँ। कोई प्रॉब्लम ओके सर, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। और कहाँ से आप बोल रहे हैं सर? मैं मथुरा फ्रॉम यूपी, डिस्ट्रिक्ट मथुरा, स्टेट यूपी। ओके। तो ये पूछ रहा था यूपी के किस एरिया से बच्चे बांग्लादेश में एडमिशन लेते हैं? देखिए सर, बहुत बड़ा कंट्री है हम लोग का इंडिया का। और नहीं, मैं रहता हूँ आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में ही, अलीगढ़ एंड मथुरा, आगरा, ये सारा एक एरिया है, थोड़ा सा 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो यही एक पूछ रहा हूँ, एक पर्टिकुलर एरिया। स्पेसिफिक मैं लोकेशन का तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन अच्छा। बहुत सारे स्टूडेंट है। अगर यूपी से, हाँ, यूपी से स्टेट बोलेंगे तो हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट है। स्पेसिफिक तो लोकेशन हम नहीं बता सकते, डिस्ट्रिक्ट नहीं बता पाएंगे कहाँ से होंगे। और उस टाइम हम लोग देखता भी नहीं, जो बिहार का स्टूडेंट है तो हम लोग बिहार का ही सोचता है, कोई वेस्ट बंगाल का है तो वेस्ट बंगाल का ही सोचता हूँ। ओके। ठीक है ना सर? अच्छा सर, एक क्वेश्चन और है जो आप आंसर करिए ना युग जी। मेरे पास एक स्टूडेंट ने व्हाट्सएप में अभी हमको भेजा है, व्हाट इफ वी डोंट पास एमसीआई, व्हाट विल हैपन देन? तो इसके लिए आप क्या उसको आप बताएंगे युग जी? बेहती जी, आपको आवाज आ रहा है? यस सर, आवाज आ रही है। हाँ सर, अगर एक एमसीआई बच्चा पास नहीं कर, हाँ, बच्चा अगर पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। उसका मार्क्स तो बहुत अच्छा है, 92% है इन पीसीबी, लेकिन उसके बावजूद वो हमसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इफ वी डोंट पास एमसीआई, व्हाट विल हैपन? सर मैं एक चीज बताना चाहूंगा बच्चे को कि अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बांग्लादेश में परसेंटेज पासिंग परसेंटेज इन 2019 इज 35.22%। ये है फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में 35% बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं। मतलब साल में एफएमजी एग्जाम 2 बार होता है, और ये जो रिजल्ट देख रहे हैं 35%, ये फर्स्ट अटेम्प्ट में है। सेकेंड अटेम्प्ट में बच्चे ऑलमोस्ट 90% बच्चे पास हो जाते हैं। तो घबराने की कोई दरकार ही नहीं है। बच्चे ऑब्वियसली बात है फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं होते हैं, तो उन्हें जस्ट नीड एन एक्स्ट्रा अटेम्प्ट, वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएंगे। हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन और इस बच्चे को आंसर करना चाहता हूँ, फिजा जावेद को, कि देखिए आप ना मेहनत करिए। आप आपका मार्क्स तो बहुत अच्छा है, 92% इन पीसीबी बहुत अच्छा मार्क्स है, तो आप डरिए नहीं। अगर आप डर जाएंगे तो आप मेडिकल में एडमिशन मत लीजिए। हाँ, आप अगर डेली का डेली 8 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं, हाँ, 4-5 घंटा क्लास और 3-4 घंटा अपने घर में हॉस्टल में, तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर आप 8 घंटा नहीं पढ़ाई करेंगे डेली का डेली, तो आप फेल होंगे ही होंगे, आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आपके मेहनत के ऊपर है, आप मेहनत करिए, आप आराम से पास होंगे। हम आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाएंगे इसके बाद। हम लोग के बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम लोग का जो इसके बाद सेमिनार होगा, तो मेरे बच्चे जो यूके में प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, वो खुद आएगा और खुद वो आपसे बात भी करेगा। हाँ, उसका भी क्लास 12 में 90% था, लेकिन वो मेहनती था बहुत, वो 8-8 घंटा पढ़ाई करता था। तो आप भी अगर पढ़ाई करेंगे, एवरीथिंग इज अचीवेबल। और नहीं पढ़ाई करेंगे तो कोई भी कॉलेज, कोई भी टीचर के पास मैजिकल पोशन नहीं है कि आपको खिला पिला के आपको पास करा देगा। ओके, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन योर हार्ड वर्क। मेडिकल पढ़ना है तो वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट कोर्स है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लाइफ, आपके हाथ में किसी और का लाइफ है, आप समझ के रखिए। इट इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशन। एनी अदर क्वेश्चन सर? एक्सक्यूज मी सर, फिजा जावेद ने एक और क्वेश्चन भी पूछा है कि उनका क्या AFMC इज गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज, and can he take admission there because his GPA is 9.5, 10th and 12th का मिला के? हेलो आंसर करिए सर। हाँ, हम बताऊं सर? जी सर, बताइए। नो प्रॉब्लम। वो तो प्राइवेट कॉलेज है और वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकता है, वो किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है अगर जीपीए 9.5 है। ऑल कॉलेज एलिजिबल।
एंड सर आई थिंक अनिसुल खान आपने हाथ रेज किया है, हैंड रेज किया हुआ है, क्या आपकी कोई क्वेरी है सर? आप पूछना चाहेंगे सर से डायरेक्टली? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जीपीए आपने बताया था, तो उसमें हाई स्कूल में कितने सब्जेक्ट के आधार पे होता है जीपीए, और इंटर में कितने सब्जेक्ट के आधार पे होता है? 10th क्लास में 5 सब्जेक्ट लेना होता है, और जी 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट लेना होता है। 3 सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, ओके। सर क्या बांग्लादेश में कोई कॉलेज है जो 30 लाख के बजट में मिल सकता है? 30 लाख के बजट में बहुत सारे कॉलेज हैं, और ढाका में भी हुए। सर आप एक दो का नेम बताएंगे प्लीज? हाँ जरूर बताएंगे। जैसे ढाका में आपको मिल सकता है यूनिवर्सल मेडिकल कॉलेज मिल सकता है, ठीक है, उसका फीस है $38,000 है। $38,000 मीन्स आपका आ रहा है, फीस है टोटल 28 लाख। तो सर इसमें फूड एंड हॉस्टल इंक्लूडेड होगा या नहीं होगा? इसमें हॉस्टल इंक्लूडिंग है। बांग्लादेश में मैक्सिमम कॉलेज है हॉस्टल इंक्लूडिंग है फीस के साथ। और बांग्लादेश में एक कॉलेज है TMSS जो बगुरा में है, राजशाही यूनिवर्सिटी के अंदर पड़ता है, उसका $40,000 है, और टोटल इसका इंक्लूडिंग है हॉस्टल, फूडिंग, ट्यूशन फीस सब इंक्लूडिंग है। और ये कॉलेज NGO के अंडर आता है। सर किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लिविंग कॉस्ट इन बांग्लादेश, एक साल का लिविंग कॉस्ट? युग जी आंसर करिए। युग जी। हाँ बताइए। सर एक बच्चे का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लिविंग कॉस्ट इन बांग्लादेश फॉर अ ईयर? अराउंड 40,000 रुपीज, 40,000 रुपया, 40 to 50,000 साल भर में। सर ये इंडियन करेंसी में? INR बता रहा हूँ, राइट, INR करेंसी में। बच्चे के मंथली जैसे होते हैं कि 4,000 के राउंड में है, तो उस हिसाब से 50,000 उसका होगा लिविंग एक्सपेंसेस। एक जन किसी ने क्वेश्चन किया है सर, डू आई हैव टू टेक एनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री इन फर्स्ट ईयर? अल्सा अंसर, अगर आप चाहें तो आप सर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो आपकी क्वेरी है। अल्सा आंसर। प्लीज लिविंग कॉस्ट के बारे में एक बार फिर से रिपीट करें, कितना लिविंग कॉस्ट आएगा वहां पे? युग जी फिर से बताइएगा। मंथली आएगा 4,000 के अराउंड, 4,000 INR। युग जी 4,000 INR। आपका आवाज नहीं आ रहा युग जी। शेख जी आप बताइए। हेलो। हाँ बोलिए युग जी, आपका आवाज बहुत ये करता है। हेलो। हाँ बताइए शेख जी, आप बताइए। अच्छा, वो जो पर्सनल एक्सपेंस मतलब उसका फूडिंग और लिविंग कॉस्ट दोनों मिला के पूछ रहे हैं क्या? जी जी जी। अच्छा, तो देखिए फूडिंग का जो है उसका 2 या 3 टाइम का जो खाना देता है हॉस्टल में, तो उसमें 4,000 to 5,000 के अंदर पड़ता है, ठीक है, ओके वो खाना के लिए। और बच्चे के डिपेंड करता है वो कितना खर्च करेगा। वो मान लीजिए अगर 50 रुपया पर डे उसका एक्सपेंस रहेगा तो वो 1,500 है, तो आपको और 2,000 मान के चलना पड़ेगा। तो अगर टोटल कीजिएगा तो 4 से 5,000 खाने के लिए लगेगा, और उसका खुद का ओन एक्सपेंस आप 1,500 से 2,000 मान के चल सकते हैं। वो है मिनिमम है, मैक्सिमम तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। हाँ, डिपेंड अपॉन द कैंडिडेट। यस सर। तो टोटल मिला के हम 6 से 7,000 ईयरली एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। 6,000 होगा तो आपको 70,000 रुपया साल में, अगर 7,000 होगा तो 80,000 साल में। तो 80,000 साल में होगा तो 5 साल के 4 से मैक्सिमम 5 लाख आप जोड़ सकते हैं। उसमें 5 साल का आना जाना मेरे ख्याल से 5 लाख के अंदर हो जाएगा, लिविंग कॉस्ट, खाना, उसका साल में आना जाना। और वो उसकी वहां पे जो है वो डाटा सर्विस 4G अच्छी सर्विस है वहां पे?
उसमें तो अभी नेट बहुत फ्री मिलता है सर, फ्री रिचार्ज मिलता है। नहीं, यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी में होगा हाँ हाँ, तो वहाँ पे डाटा यूजेस है अलाउ। अलाउ मतलब कॉलेज में वाईफाई? जी 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 जी। कॉलेज में वाईफाई अलाउ नहीं करता क्योंकि उसका पढ़ाई बहुत स्ट्रिक्ट है। उसमें हाँ, वीकली एग्जाम होता है, ट्राम में एग्जाम होता है, कार्ड एग्जाम होता है, आईटेम एग्जाम होता है, बहुत पढ़ाई करना होता है बांग्लादेश में। नहीं एक्चुअली बच्चा अगर कोई लेक्चर सुनना चाहता है मेडिकल के या कुछ इस टाइप की चीज तो वो वहाँ पे अवेलेबल है, उसका कुछ हाँ, अपना पर्सनल वो करना चाहे अगर उस पर नेट पे। देखिए बच्चे लोग जो मोबाइल तो अलाउ होगा ना वहाँ पे? मोबाइल क्लास के अंदर तो अलाउ नहीं नहीं करता। क्लास में नहीं, अपने हॉस्टल में तो अलाउ होगा। हाँ, हॉस्टल में तो अलाउ है, और हर हॉस्टल में बच्चे लोग क्या करते हैं, शेयरिंग नेट ले लेता है। मान लीजिए जी एक रूम में 2-3 स्टूडेंट मिला के महीना में 500 रुपया बांग्लादेश टका है, तो वो जी नेट ले लेते हैं, उसमें शेयर करते हैं। जी जी। सर आपको सब ओके मिल थैंक जाएगा, नेट वेट जैसे इंडिया में है ना वैसे वहां भी मिल जाएगा, कोई यू प्रॉब्लम थैंक का यू। बात नहीं। एंड सर लास्ट चीज हम पूछ लेते हैं, पहले हम बता देते हैं, पिटफॉल्स टू अवॉइड व्हाइल चूजिंग मेडिकल कॉलेज अब्रॉड। ठीक है, तो बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि भाई इस कॉलेज में जाओ, इसका WHO रैंकिंग 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो WHO कोई भी कॉलेज को रैंक नहीं करता है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लिस्टिंग करता है कि ये कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है बस। वैसे ही यूएनएसको भी कोई कॉलेज को रैंक नहीं करता है। और अगर कोई कॉलेज आपको कोई एजेंट बताएगा या मिसगाइड करेगा कि मेरा रैंकिंग बहुत अच्छा है, तो अगर रैंकिंग कॉलेज है वर्ल्ड रैंकिंग वाला, तो वो बच्चे लोग को डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेना, उसका प्रोसेस होगा। जैसे इंडिया में नीट का एग्जामिनेशन है, इंटरव्यू है, ये है, वैसे तो जो अच्छे एकदम टॉप क्लास के वर्ल्ड रैंक कॉलेजेस होते हैं, उनका एडमिशन प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है। मैं ये क्वेश्चन इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर इसका वर्ल्ड रैंकिंग क्या है। तो वर्ल्ड के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनका एडमिशन बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। लाइक इंडिया में जैसे होता है एम्स में आपको चाहिए तो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे हम आपको यूरोपियन डिग्री देंगे, अमेरिकन डिग्री देंगे, तो ये सब हाइप है। ये मतलब आप यूरोपियन डिग्री भी अगर लेंगे, अमेरिकन डिग्री भी लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपका कुछ होने वाला नहीं है। आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, पढ़ाई में अगर आपका अच्छा मार्क्स आएगा तब आप इंडिया में आके प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड चीज है चांस टू सेटल डाउन इन दैट कंट्री। 99% कंट्रीज आपको वहां पर सेटल डाउन करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। वो लोग बोलते हैं आओ मेरे पास आके पढ़ाई करो और वापस अपने कंट्री में जाओ। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि स्टडी फॉर फ्री इन जर्मनी। ये फ्री वर्ड बहुत डेंजरस वर्ड है। देयर इज नथिंग फॉर फ्री इन दिस वर्ल्ड। फ्री मतलब और ज्यादा एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तो जर्मनी में फीस कम है, लेकिन प्रैक्टिकली जर्मनी का अगर आप स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट देखेंगे तो 0 है। ठीक है, कोई भी बच्चा, क्योंकि जर्मन में ना MBBS जर्मन लैंग्वेज में होता है, उसके पहले आपको जर्मन लैंग्वेज सीखना पड़ेगा, फिर वहां पर एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा, फिर आपका एडमिशन होगा, और वहां का कॉस्ट ऑफ लिविंग पर मंथ होता है 80,000 रुपीज। तो वो फीस से बहुत ज्यादा होता है। जॉब्स आपको नहीं मिलेगा। जैसे वो लोग पूछता है कि पार्ट टाइम जॉब्स हम कर सकते हैं कि कोई भी कंट्री में आप पार्ट टाइम जॉब्स नहीं करने पाएंगे। ठीक है, आप पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए, फिर अगर आप वहां पढ़ाई करेंगे तो आपको उस कंट्री का सिटीजनशिप मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप पढ़ाई करने जा रहे हैं, आपका स्टडी वीजा है, पढ़ाई करके वापस आइए। और जो लास्ट चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे एजेंट्स ना, जैसे डॉलर का रेट अभी 75 चल रहा है, वो लोग आपको 65 69 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, तो वो रॉन्ग है। तो अगर आप 65 या 69 के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, आपको 4 से 5 लाख रुपए का डिफरेंस हो जाए। तो ये सब चीज नोट रखिएगा। ठीक है, मैंने आपको जितना भी कैलकुलेशन दिखाया है सब उसके हिसाब से दिखाया है। और लास्ट चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप अप्लाई करेंगे हम लोग के थ्रू, आज के लिए मैं आपको एक स्पेशल ऑफर दे रहा हूँ, स्कॉलरशिप। अगर आपका 60 से 75% है इन PCB इन क्लास 12, तो मैं आपको अपने तरफ से 50,000 रुपीज का स्कॉलरशिप दूंगा। अगर आपका 76 से 85% बीच में है तो मैं आपको 75,000 रुपीज का स्कॉलरशिप दूंगा। और अगर 86% के ऊपर है इन PCB तो मैं आपको 1,25,000 का स्कॉलरशिप दूंगा। ठीक है, ये नेशनल विद्या फाउंडेशन देगा। ठीक है, इसके लिए मैं आपको लिंक चैट बॉक्स में डाल रहा हूं, आप वहां से कॉपी पेस्ट करके
अगर आप 5,400 रुपीज देंगे अभी का भी, तो मैं आपको ये ऑफर करने का, ठीक है। मैंने लिंक आपको चैट बॉक्स में पेस्ट कर लिया है, आप देख लीजिए। कैन यू सी माय स्क्रीन दीदी? हाँ, ऐसे आप यहाँ पर आइए, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। ये स्कॉलरशिप है, ये एमबीबीएस फिलीपींस लिखा हुआ है, ये मिस्टेक है, एक्चुअली एमबीबीएस के लिए है स्कॉलरशिप। सर आपका स्क्रीन पूरा शेयर नहीं हो रहा, खाली वो लिंक दिख रहा है, लिंक फॉर सीट बुकिंग। 1 मिनट, मैं फिर से शेयर करता हूँ। अब आ रहा है? अब आ रहा है। ठीक है, तो आप 5,400 रुपीज देंगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए, फोन नंबर लिखिए, नेक्स्ट करिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, आप यूपीआई आईडी से पेमेंट कर सकते हैं, और भी ऑप्शंस में आइए, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ईएमआई, वॉलेट, पे लेटर, एनईएफटी ट्रांसफर आप कर सकते हैं। तो ये पेमेंट आ जाएगा, तो आपका हम जो मैंने आपको स्क्रीन दिखाया था उस हिसाब से मैं आपको स्कॉलरशिप अपने तरफ से। अगर आप हमसे पूछेंगे कि मैं आपको स्कॉलरशिप कैसे दे रहा हूँ, इसका भी एक रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एडमिशन कराने के लिए एक सर्विस चार्ज लेते हैं, ठीक है। हम लोग का सर्विस चार्ज है बांग्लादेश के लिए 75,000, तो वो 75,000 से मैं आपको स्कॉलरशिप से माइनस कर दूंगा। सेकंड क्या होता है कि कुछ कॉलेजेस, मैं ये स्कॉलरशिप हर कॉलेज के लिए नहीं दे रहा हूँ, कुछ कॉलेजेस वहां से हम लोग को कमीशन भी मिलता है, तो वो कमीशन मैं नहीं लूंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा, ठीक है। तो जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको फर्स्ट टाइम प्रॉमिस किया था, मैं सच बताता हूँ, कोई भी चीज मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। तो अगर आप आज ये ऑफर लेंगे तो बस आज के लिए मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ, यू कैन अवेल ऑफ दिस ऑफर। अब आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछिए, हम लोग के एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपको आंसर। सर एक क्वेश्चन राज पाटिल राजा हैं, उन्होंने किया था रिगार्डिंग अकोमोडेशन कि व्हाट इज अप्रोक्सीमेट लिविंग कॉस्ट इन बांग्लादेश फॉर अ ईयर। सो सर अभी युग सर ने और बशरुद्दीन सर ने दोनों ने ये चीज एक्सप्लेन कर दिया है कि अप्रोक्सीमेशन में 4,000 to 5,000 इंडियन करेंसी मंथली आपका एक्सपेंस आता है। तो आई होप सर आपका ये डाउट क्लियर हो गया हो, अगर नहीं तो आप डायरेक्टली अभी सर से फिर से ये क्वेरी कर सकते हैं। सर प्लीज आप इनाम मेडिकल कॉलेज के बारे में बताएंगे, उनका एजुकेशन एंड हॉस्टल वाइज कैसा है वो? मैं बताऊं? जी सर। ओके, इनाम मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा कॉलेज है, वो ढाका यूनिवर्सिटी का अंदर पड़ते हैं और सावर में पड़ता है। वो मेन सिटी से 25 से 30 किलोमीटर दूर है, और वो 1,000 बेडेड हॉस्पिटल है, और कैंसर हॉस्पिटल के लिए तो नाम में जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, ये जो कॉलेज का ओनर है वो भी वहाँ का मिनिस्टर है, ठीक है। और इनाम सर का नाम पे ही वो कॉलेज किया है, और पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। और 2018-19 में उसका फीस थोड़ा ज़्यादा कर दिया था, $45,000 विदाउट हॉस्टल, लेकिन 2019-20 सेशन में उसको फिर ओल्ड फीस स्ट्रक्चर कर दिया, $40,000। उसका फर्स्ट ईयर है 40,000, टोटल फीस है $40,000, फर्स्ट ईयर है $20,000, और बाकी जो $20,000 है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ईच $5,000, ठीक है। और उसका हॉस्टल के लिए $100 चार्ज है, खाने के लिए $50 या $60 चार्जेज है। लेकिन अच्छा कॉलेज है, गुड कॉलेज है। हेलो हेलो सर, मतलब एक बेस्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बांग्लादेश में आप बता सकते हैं? एक स्टूडेंट का क्वेरी है। हाँ, बेस्ट मेडिकल कॉलेज तो अगर अकॉर्डिंग टू एफएमजी का रिजल्ट के हिसाब से पूछेंगे, बोलेंगे तो जहरुल इस्लाम मेडिकल कॉलेज है, लेकिन वो ढाका यूनिवर्सिटी के अंडर है, लेकिन ढाका से 120 किलोमीटर दूर है। उसके बाद है बांग्लादेश मेडिकल कॉलेज है, ढाका नेशनल मेडिकल कॉलेज है, हॉली फैमिली रेड क्रिसेंट है, इब्राहिम है, ग्रीन लाइफ है, एनाम है,
अनवर खान मॉडर्न मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेज है, उसको बजट के हिसाब से और उसके रिजल्ट के हिसाब से वो चूज कर सकते हैं। सर ये ब्रह्मबरिया मेडिकल कॉलेज कैसा है, किसी ने पूछा है, एजुकेशन वाइज एंड हॉस्टल वाइज एंड अबाउट फूड आल्सो सर। देखिए ब्राह्मणबेरिया मेडिकल कॉलेज जो है आज के डेट में सबसे स्टार्टिंग कॉलेज है, $33,000 उसका फीस है। बांग्लादेश में सबसे जो कम फीस वाला कॉलेज है आज के डेट में वही शुरू होता है, $33,000 है। और लास्ट ईयर वो फॉरेन लेने के लिए उसको अप्रूव मिला है, तो ये सेकेंड ईयर होगा फॉरेन स्टूडेंट के लिए, ठीक है। और वो चिट्टागोंग यूनिवर्सिटी के अंदर है और वो ढाका से थोड़ा दूर है। सर कोई कॉलेज है बांग्लादेश में जो विद इन 25 lakhs में हो जाए? 25 लाख में मतलब है $33,000 है तो हो जाएगा 34,000, $35,000 जो है। अगर उसके बजट में जाना है तो हम बोलेंगे नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज जा सकता है जो $35,000 है और 22-23 साल का पुराना कॉलेज है, अच्छा एजुकेशन है, अच्छा कॉलेज है। ओके देखिए $35,000 मतलब 26 लाख रुपीज आता है, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि 26 लाख से तो 1-2 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा जोड़ के अपना बजट बनाइए, ठीक है। बिकॉज हर साल इन्फ्लेशन होता है, हर चीज कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। जैसे इस साल आपका एपिडेमिक आ गया, कोविड आ गया, तो ऑलवेज डोंट गो फॉर द लोअर साइड। आपका जो भी बजट है उससे 3-4 लाख रुपीज ऐड करके आप अपने पास रखिए, क्योंकि पैसा तो आप ही के पास रहेगा, ठीक है। आप तो किसी को पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ऑलवेज कीप 3-4 लाख रुपीज एक्स्ट्रा, इट इज गुड फॉर यू, स्टूडेंट्स लोग के लिए अच्छा है। और कोई क्वेश्चन है सर? और सर मैं ये बता सकता हूँ कि अगर किसी को स्कॉलरशिप चाहिए तो आप प्लीज ये जो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ उससे आप अप्लाई करिए। ये हम लोग ओनली फॉर फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए दे रहे हैं। मैं आपको लिंक फिर से चैट बॉक्स में भेज रहा हूँ। एडमिशन सर आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। एडमिशन स्टार्ट हो गया, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर नीट पास किया तो बहुत अच्छा है, और इस साल अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस अप्लाई कर दीजिए, अपना डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आपको पैसा देने का कोई जरूरत नहीं है फॉर द टाइम। आप नीट एग्जाम पास हो जाएंगे उसके बाद पैसा दे दीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स कम से कम भेज करके हम आपका सीट रिजर्व करके रखेंगे, एंड 5,400 रुपीज भेजे तो आपको स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन मिलेगा। हेलो, ये सर पूछिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरी एक्चुअल क्या है, मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ और मैं भी स्कूल एजुकेशन प्रिंसिपल हूँ। राजस्थान में कहाँ से बोल रहे हैं सर? मेरी अलवर से सर। अलवर से, ओके ओके, वेरी गुड। मेरा फ्रेंड भी अलवर में रहता है। डॉक्टर सोलंकी को आप जानते हैं क्या? डॉक्टर सोलंकी? बिल्कुल 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 जानते हैं, गंगा सिंह सोलंकी। नहीं, एक विक्रांत सोलंकी है, डॉक्टर है। विक्रांत सोलंकी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जानता हूँ सर, नाम सुना हुआ है। नाम सुना हुआ है ना? तो मेरा नाम सिद्धार्थ जायसवाल है, हम लोग साथ में ही पढ़े। ओके, बताइए। जी मेरी बेटी की 10 है ये आपका CGPA। वेरी गुड। कौन सा क्लास में 10 है? कौन से? दोनों मिलाकर आपने जो फॉर्मूला बताया है उसमें 94% उसकी 10th में है और 91% उसकी 12th में है। ठीक है सर, आप एक काम करिए, आप पहले ना सार्क कोटा के लिए अप्लाई कर दीजिए, नंबर 1। कैसे अप्लाई करते हैं मैं बता दूंगा। इन द मीन टाइम आप अपना मार्कशीट हमको भेज दीजिए, ईमेल कर दीजिए या व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है। मेरा ईमेल आईडी तो आपके पास होगा, information@nvfoundation.com। हाँ, ये चैट बॉक्स में आप डाल दीजिए सर, वहाँ देख लेंगे। हाँ, चैट बॉक्स में हम डाल दे रहे हैं अपना ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर भी डाल दे रहे हैं। आप उसके अंदर अपना मार्कशीट सब हमको भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। और अगर आपका सार कोटा में हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन सार कोटा में थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि सार कोटा में अगर आपका 95 के ऊपर आता है ना तब चांसेस होता है, ठीक है। जी तो आप दूसरी, हाँ पूछो। ये सर कि इस 10 CGPA पर जो कन्वीनियंट हो, मतलब गर्ल्स स्टूडेंट के लिए आने में जाने में और ट्रेवलिंग के हिसाब से, तो कौन सी कॉलेज अच्छी रहेगी? सर जो गर्ल्स कॉलेज है ना, वहाँ का 3-4 गर्ल्स कॉलेज है, गर्ल्स उसी में आपको भेजेंगे। सर आप बताइए, शेख जी आप बताइए। मेडिकल कॉलेज एंड वुमेन्स एंड हॉस्पिटल, ये टॉप कॉलेज है अकॉर्डिंग टू ढाका यूनिवर्सिटी के अंडर है, और ढाका यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेज है और क्लोज टू एयरपोर्ट से 1 किलोमीटर दूर है।
और ये टॉप कॉलेज है, फीस भी थोड़ा हाई है, अच्छा कॉलेज है। और यहाँ का यूएसए से भी लड़की पढ़ता है, अमेरिका से भी इस कॉलेज में लड़की पढ़ता है। जी अगर जी अगर राजस्थान का पढ़ रहा है, इस तरह कॉलेज चाहिए तो वो कॉलेज होगा ग्रीन लाइफ मेडिकल कॉलेज है। हमारा ही स्टूडेंट पढ़ रहा है पुनीत कुमार वायस, उसका फादर का नाम है गिरिराज कुमार वायस, कतर स्टील का सीईओ है। ट्रैवलिंग कॉस्ट क्या होती है सर एक ट्रिप की बच्चे के आने जाने की? अगर एक ट्रिप के आने जाने के ट्रैवलिंग कॉस्ट तो देखिए, हम लोग कलकत्ता से तीनों तरफ है, रोड है, ट्रेन है, दिल्ली से बताइए सर, आप दिल्ली से बता दीजिए। दिल्ली से बता दीजिए फ्लाइट कॉस्ट कितना होगा? 7 या 8 हजार होगा। 10,000 पकड़ लीजिए सर, 10,000 पकड़ लीजिए राउंड फिगर। वन साइड? हाँ, वन साइड 10,000। उससे कम भी होता है, वो डिपेंड करता है कितना दिन पहले से बुक कर रहा है। ओके ओके। 5-6 हजार से भी कभी कभी मिल जाता है। बच्चे का क्या नाम है सर? बच्चे का क्या नाम है? खुशी। खुशी। खुशी, अच्छा ठीक है सर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। तो सर आपको तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, क्योंकि आप अलवर के हैं, तो अलवर में कोई टेंशन नहीं है। अलवर में डॉक्टर सोलंकी भी हैं, उनसे भी आप जाके मिल लीजिएगा, ठीक है? जी जी। उनका खुद का हॉस्पिटल है और वो नर्सिंग कॉलेज भी स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ पर। हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर्स ही हैं, तो कोई टेंशन का बात नहीं है। बिल्कुल सर, मिलते हैं। और बताइए सर। बस थैंक यू सर। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल हैपन इफ वी डोंट क्वालिफाई नीट इन 2021 एंड वी हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन इन 2020। इस साल उन्होंने एडमिशन ले लिया, लेकिन ना वो 2020 क्लियर कर पा रहे ना 2021। आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। अगर आप नीट नहीं पास करने पाएंगे 2020 में या 2021 में, तब आप इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं यही रेकमेंड करूंगा कि जो बच्चा नीट पास किया है वही एडमिशन ले। अगर आप नीट नहीं पास किए हैं, क्योंकि जब आप फॉरेन जाएंगे या कहाँ पर भी जाएंगे, तो आप अपना एडुकेशन, अपना ध्यान लगाएंगे एमबीबीएस पढ़ाई करने में, ना कि नीट को पास करने के लिए। तो आपका 1 साल का पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख जितना भी, तो इट इज अ ह्यूज लॉस ऑफ मनी। ठीक है, तो आप नीट पास करके ही आप जाइए फॉरेन, ठीक है? अदरवाइज आप मत जाइए, देयर इज नो यूज। एनी अदर क्वेश्चन? एनी अदर क्वेश्चन मैम? ओके गाइस, सो किसी का और कोई क्वेश्चन नहीं है तो थैंक यू फॉर कमिंग। एंड नेक्स्ट वीक हम लोग का फिर सेम टाइम वेबिनार होगा, एंड हम लोग के साथ कुछ स्टूडेंट्स भी आएंगे जो फॉरेन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको भी मैं लेके आऊँगा। एंड जिसको यूके में जाना है, हाँ, उसके लिए पूरा इंफॉर्मेशन मैं नेक्स्ट वेबिनार 5 o'clock सेम टाइम में दूंगा। सो बी इन कॉन्टैक्ट विथ मी, एंड आई वुड लाइक टू थैंक वेरी मच बसुद्दीन सर एंड वेलकम सर। एंड सर जो दूसरे सर थे वो दिखाई नहीं दे रहे। दिखाई दे रहे सर? हाँ, आप दिखाई दे रहे युग जी? दिखाई नहीं दे रहे, वीडियो ऑन करके। हाँ, अभी आप वीडियो ऑन किए। युग जी आप गायब हो गए, हमको लगा आप है नहीं सर। तो युग जी राजस्थान में रहते हैं, राजस्थान के एक्सपर्ट हैं, राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। तो जो राजस्थान के बच्चे, अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप पूछ सकते हैं। युग जी इज देयर टू हेल्प यू। एंड बसुद्दीन सर बांग्लादेश में भी रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो ये सब एक्सपर्ट्स हम लोग के ऑफिस में हैं, दे स्पेशली फॉर बांग्लादेश एक्सपीरियंस। और यही आप लोग के साथ जाएंगे बांग्लादेश और आपको हर चीज़ के लिए हेल्प करेंगे। ओके सर, थैंक यू एवरीबडी फॉर पार्टिसिपेटिंग। सी यू नेक्स्ट फ्राइडे।